All right जी, another case study, October November 2025, 4-3 वेरिएंट 4-3। एक और केस स्टडी है, देखते हैं जरा। अगेन केस स्टडी को स्किम थ्रू करना है। केस स्टडी का अगर नाम ले लिया उसने, उस चीज का, उस जगह का, उस मुल्क का, उस कंट्री का, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द केस स्टडी, यू मस्ट रेफर टू इट। ठीक है, कोशिश करनी है A2 में तकरीबन हर क्वेश्चन में रेफर आपने करना ही करना है। नाम ले रहा नहीं ले रहा, आई चेंज माई व्हाट आई सेड, आपने रेफर करना ही करना है A2 की केस स्टडी। ठीक है, एएस में होता था ना कि वो पॉसिबल कॉज वो पूछ लेता था, उसमें जरूरत नहीं होती थी। इसमें आपने लेना ही लेना नाम। इनइक्वालिटी एंड ग्लोबलाइजेशन सब कुछ। हाँ हाँ भी देखेंगे, तो आपने रेफर लाजमी करना है। चलें जी, a government commission published a report saying that global poverty and inequality were worsening and there was a risk of the gap there was a risk that the gap between rich and the poor would increase. किधर, which country? कहीं से उठाया हुआ है तो कंट्री का नाम ही नहीं। But according to a newspaper, a lot of what is said about inequality is wrong. It overlooks the fact that in the past 50 years saw a period of dramatic reduction in global inequality. The normal measurement of relative inequality is the Gini coefficient, we know. और ग्लोबल इनइक्वालिटी, अच्छा ग्लोबली बात कर रहे हैं दुनिया की, 1975 में कितना था? 0.75, और अब वो गिर के हो गया। वन का क्या मतलब है? 1 person owns the entire global wealth and income. जीरो का क्या मतलब है? इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर किसी का एक्चुअल में जो भी जीडीपी पर कैपिटा निकलेगा ग्लोबली दुनिया का, हर किसी के पास उतना एग्जैक्टली है वो भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हायर द जीनी कोफिशिएंट, हायर द इनकम डिस्पैरिटी। और 2022 में गिर गया। लें जी, पहले गिरा और इधर जरा ज्यादा गिरा है ना, 2020 से 20 इन 2 सालों में। हाँ, it is important to understand that this trend rather than make the mistake of the commission. Huh? It is important to understand that understand this trend rather than make the mistake of the, इस ट्रेंड को समझे रादर वो जो कमीशन ने मिस्टेक की हुई है वो आप भी करें। अजीब सी अंग्रेजी लिखी हुई। The fall in global inequality should not come as a surprise. For about 200 years, the benefits of industrialization went mainly to countries in Europe and North America. Income inequality between these countries and poorer countries worsened. The spread of globalization in recent decades has meant that this difference has lessened. Countries such as China and India have benefited from large increases in per capita average income, as shown in the table. Ignore the table. With such an increase in per capita incomes, maybe some level of inequality does not matter. Indeed, it might be necessary for a condition for economic growth. Instead of concentrating on eliminating inequality, perhaps the focus should be on the absolute position of the poorest. तो inequality को छोड़ें, absolute poverty पे देखें, जो कि पाकिस्तान में भी recently बढ़ी है। If the attention is on the relief of poverty rather than the wealth of the richest, improvements can be seen. Life expectancy has increased, most noticeably by 10 years in the past 2 decades in the poorest region in the sub-Saharan Africa. Literacy rate have also increased. Those in absolute poverty across the world have fallen from more than a third to a tenth of the world's population. Absolute poverty में पहले 1/3 थी दुनिया, और अब कितनी रह गई है? 1/10। पहले 33% एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे थे, अब सिर्फ 10% एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहे हैं। Critics of globalization and foreign direct investment by multinational companies point to the possible negative environmental effects, the weakening of individual cultures, and the reliance on international financial institutions that can fail. They also claim there can be exploitation of workers, leading to greater wage inequality and possible increases in domestic unemployment as cheaper goods are imported. ये जो है ना इंडिविजुअल कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करने का, एक मूवी है बहुत पुरानी, मतलब है तो 50-60s की मूवी, मैंने अपने बचपन में देखी थी, मैं अभी ढूंढ भी रहा था। द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, किसी ने देखी नहीं? द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, वो इट्स एन एक्सीलेंट मूवी, एक्सीलेंट मूवी। नरेशन वाली मूवीज नहीं होती बहुत पुरानी, अफ्रीका के अंदर वो मूवी बनी हुई है, और उसके अंदर ये होता है कि एक लो फ्लाइंग प्लेन होता है, जहाज, वो ना कोका कोला की बोतल बंदा पी के नीचे फेंक देता है शीशे की, और एक अनटच्ड ट्राइब होता है अफ्रीका के अंदर जिसने
कुछ दुनिया में कुछ नहीं देखा होता, वो अपने उधर उसमें रह रहा होता है, डेजर्ट टाइप एरिया होता है, आई डोंट नो। तो वो बॉटल उनके पास आ जाती ना, वो उस शीशे की कोका कोला की बॉटल से 10,000 यूजेस ढूंढ लेते हैं और उसकी वजह से उनकी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो जितनी भी मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, ये कल्चरल चीजों को किस तरह अफेक्ट कर रही हैं, कितना चेंज ले आई हैं। ठीक है, कल्चर्स बदल गए हैं, और बाकी दिस इज ट्रू। एनवायरमेंटल तो है ही है इफेक्ट्स, लेकिन कल्चरल इफेक्ट्स भी आते हैं। वो मुझे, मैंने पढ़ा है, मुझे एकदम वो याद आ गई। देखिएगा, द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी। चलें जी। The article refers to Gini coefficient. With the help of a diagram, explain the link between a Gini coefficient and a... हाँ जी, अब इन डेप्थ जिसने नहीं पढ़ा हुआ, डायग्राम के अंदर के जीनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व का क्या लिंक है। एक और बात, द आर्टिकल रेफर्स टू द जीनी कोफिशिएंट, तो हल्का फुल्का आर्टिकल को फिर हल्का सा टच दे देंगे। जल्दी से आ जाएंगे, जीनी कोफिशिएंट जल्दी से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जीनी कोफिशिएंट इज an index that refers to, that shows income disparity. Its value lies between 0 and 1. 1 means के सारी इनकम एक बंदे के पास है, 0 means के equally divided है। higher the value, higher the income disparity. जीनी कोफिशिएंट का आप फॉर्मूला बता दें जल्दी से। a over a plus b। अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ ही लॉरेंस कर्व बनाना पड़ेगा। हम जाएंगे इधर, हम लेंगे क्या, 100% पॉपुलेशन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज लिखना जरूरी है, और इधर हम लेंगे 100% वाई एक्सिस के ऊपर जीडीपी, 100%, ये भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज। ठीक है, ये आ गई हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी, और ये आ गया हमारा लॉरेंस कर्व। ये एरिया सारा A है, ये एरिया B है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन जीनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व। जितना A कम होगा तो उतना जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू को क्या होगा, जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। A कम होगा ना, डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ रहे हैं, A ओवर A प्लस B है ना, बेसिकली इट्स A दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एंटायर ट्रायंगल है। समझ रहे हैं, तो जितना A कम होगा, जितना, इन अदर वर्ड्स, लॉरेंस कर्व is closer to the line of equality, उतना हम लिखेंगे डिनोमिनेटर जो है, जो एरिया है, डिनोमिनेटर है ऊपर, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, द न्यूमरेटर दैट इज A उतना कम होगा, और जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू उतनी कम होगी। तो इसका कहने का मकसद ये है कि लॉरेंस कर्व जितना, लेट सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 के केस में जीनी कोफिशिएंट कम आएगा, 2 के केस में जीनी कोफिशिएंट उससे ज्यादा आएगा। अच्छा जी, जीनी कोफिशिएंट दिए में हैं, फॉर एग्जाम्पल अब फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हो सकता है इसके नंबर हो सकता है इसके नंबर ना हो। ये केस स्टडी मैंने भी नहीं कभी देखी थी पहले, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेफर हम कर देंगे। चाइना में इनकम डिस्पैरिटी जैसे कि क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और इंडिया में भी इंक्रीज कर रही है। उसके अलावा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होता, बस जितना कम, इसलिए हमने हाईएस्ट लोएस्ट देखा था। हाईएस्ट किसका था, साउथ अफ्रीका का 0.7 समथिंग था, है ना, और लोएस्ट कितना था, लोएस्ट था स्लोवेकिया, स्लोवेकिया था, राइट, और वो 0.3 समथिंग था, 0.2 समथिंग था, 2.8 या 2.7 था। तो उससे अंदाजा लगा लें कि इधर ये मतलब दे आर फेयरली फाइन। जी, बात समझ आई। आर्टिकल रेफर्स टू जीनी कोफ विद हेल्प ऑफ एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन
जीनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंस कर्व। मेरा नहीं ख्याल से इससे और कुछ लग रहा है। लॉरेंस कर्व बना दिया, लिंक समझा दिया, जीनी कोफिशिएंट अलग समझा दिया, ये बता दिया कि जितना करीब होगा लाइन ऑफ इक्वालिटी के लॉरेंस कर्व उतना जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, उतनी इनकम डिस्पैरिटी भी कम होगी। थोड़ा सा चाइना इंडिया का जिक्र कर दिया, इसका मतलब चाइना और इंडिया का लॉरेंस कर्व, दोनों का लॉरेंस कर्व नीचे आया और जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ी है। बस चलें देखें, हो सकता है 0 आ जाए। ओए इतनी लंबी कहानी। चलें जी, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्यूरेटली लेबल्ड लॉरेंस कर्व, रट्टा लगाना पड़ेगा। एक्सेस आते थे किसी को सही सही बता दे? नहीं आते थे? याद याद करना पड़ेगा, बात खत्म होगी। ये देख रहे हैं कितनी निटी ग्रिटीज में जाके वो ये उठाता है चीजें। फॉर्मूला टू शो कैलकुलेशन ऑफ जीनी कोफिशिएंट, ए ओवर ए प्लस बी आता था। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं हो ए ओवर ए प्लस बी हो, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स ओवर एक्स प्लस वाई लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। या आप ये लिख दें दिस शेडेड एरिया डिवाइडेड बाय द एंटायर ट्रायंगल, समझ रहे? कोई नाम दे दें बेशक, लेकिन ये आसान तरीका है। लेकिन जी 3 नंबर तो आपके मुफ्त के यहां पे हैं। जीनी कोफिशिएंट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन द कंट्री इज अनइक्वल। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ जीनी कोफिशिएंट वही चीज है। मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज है। हाँ, और रेफर करने के कोई नंबर नहीं थे, जो कि हमें शक था, लेकिन हमने आदत बना ली अपनी, हल्का सा हम टच दे दिया करें। हाँ जी, आसान है मुश्किल? आता हो तो आसान है, मैंने बता दिया है तो आसान लग रहा है। आता ही ना हो जब, तो फिर क्या करेंगे? क्या ख्याल है? ये गेम है सारी। सर इस क्वेश्चन के केस में अगर हम जीनी कोफिशिएंट ही को डिफाइन करें और कहते हैं 0 और 1 को फॉर्म करें तो हमें 4 नंबर मिल सकते हैं। जिन्हीं कोफिशिएंट को डिफाइन करें, फॉर्मूला यानी बता दें और साथ वो 0 और 1 को, यानी बेसिकली इससे डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। जिन्हीं कोफिशिएंट मेजर्स, हाँ मोरलेस नहीं, लेकिन ये मैक्सिमम 5, इसमें उसने ना कोई गड़बड़ की हुई है जो एक ही रिपीट किया हुआ है, लेकिन हाँ अपेरेंटली 4 मिल सकते हैं आपको अगर जिन्हीं कोफिशिएंट सही आता हो। मसला ये, बात टेक्निक की नहीं है, बात सारी किसकी है? कंटेंट की। कंटेंट आता है, रट्टा लगा हुआ है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं। इक्विटी एंड इक्वालिटी, अब कॉन्सेप्ट सबको आता है, लिखना क्या है, अंग्रेजी क्या लिखनी है? इक्विटी में अंग्रेजी क्या लिखें? ओनरशिप। ये वो इक्विटी नहीं है, ये वो याद है पिक्चर दिखाई थी एक, वो डब्बों पे जो खड़े हुए थे। अब अंग्रेजी बताएं। एज पर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पर्सन, लेकिन यहां तो इनकम, जारी बात है इनकम की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फेयरनेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर स्पेसिफिक होंगे ना। फेयरनेस डेफिनेशन ये, फेयरनेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल या हाउस होल्ड। फेयरनेस कैसे के, जिसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इक्विटी के लिए सबसे अच्छी चीज है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि अमीर गरीब से 0 टैक्स लें, थोड़े से और अमीर हो थोड़ा सा टैक्स लें, और जो बहुत अमीर है उससे परसेंटेज ऑफ इनकम ज्यादा टैक्स लिया जाए। इक्वालिटी ये हर किसी के लिए इक्वल चार्ज किया जाए। मसला ये नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी को आता है, हाउ यू एक्सप्रेस इट। क्वालिटी जनरली इक्वल अपॉर्चुनिटी, equity refers to the need to achieve greater fair outcomes, fairness, समझ रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी, और ये क्या है? फेयरनेस। बात समझ आई? इज दिस क्लियर?
But according to the newspaper, a lot of what is said about inequality is wrong. Analyze whether the table is a conflict between what the newspaper wrote about changes in equality and table 1.1. आ जाए जी। टेबल ये कह रहा है कि इनकम पर कैपिटा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इधर भी इनकम पर कैपिटा इन सालों में बढ़ गई है, लेकिन साथ साथ इनकम डिस्पैरिटी भी इंक्रीज की है। इनकम डिस्पैरिटी भी साथ साथ इंक्रीज कर रही है। ये कह रहा है inequality were worsening and there was a risk that the gap between the rich and the poor would increase। ये हम लिख सकते हैं इधर से। A lot of said about inequality is wrong। पहले तो आप करें कॉमनैलिटी पे बात, ठीक है। जो डेटा बता रहा है वो कंसिस्टेंट है। डेटा ये कह रहा है कि इनकम डिस्पैरिटी तो नो डाउट बढ़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इनइक्वालिटी के बारे में गलत कह रहा है, लेकिन टेबल उसको सपोर्ट कर रहा है। इनकम इनइक्वालिटी तो इन मुल्कों में भी बढ़ी है जिनकी वो एग्जांपल्स दे रहा है ऊपर, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ी है, ठीक है। इनकम कैसे बढ़ी है, फॉर्चून बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ओवरऑल इनकम बढ़ गई है। ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है क्या, चाइना में उससे भी ज्यादा से बढ़ी है, 1000 से 13,000 चलेगी। लेकिन बात इनकम डिस्पैरिटी की हो रही है। तो खाली इनकम बढ़ना है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ रही हो, ठीक है। वो कह रहे हैं रिडक्शन इन ग्लोबल इनइक्वालिटी हुई है, लेकिन ग्लोबली ये दुनिया दो सबसे बड़े मुल्क हैं, और जिसको वो रेफर कर रहे हैं कि यहाँ इनकम बढ़ गई। एवरेज पर कैपिटा बढ़ना और चीज है, और इनकम डिस्पैरिटी बढ़ना और चीज है। हाउ मेनी मार्क्स, 5। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले तो कुछ रेफर करने का नंबर मिल जाएगा हमें, वैल्यूज चाइना और इंडिया की। फिर हम उसकी कॉमनैलिटी पे आ जाएंगे कि बात दोनों सही कर रहे हैं, दोनों में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी है, ग्लोबली भी बढ़ी है जैसे कि वो कह रहे हो, और जीनी कोफिशिएंट भी यही कह रहे हैं कि इनकम डिस्पैरिटी इंक्रीज की है। अब आते हैं, फिर हम आते हैं कि आर्टिकल कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में। इधर मुझे क्या याद आ रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, इधर मुझे कुजने कर्व याद आ रहा है कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आप ये बोलें कि अप्रोचेस डिफरेंट हैं। आर्टिकल थोड़ी सी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। ग्लोबल इनकम जब बढ़ती है तो फिर उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। शुरू में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है, इधर जीनी कोफिशिएंट है, बनाने की जरूरत नहीं है, इसको रेफर किया जा सकता है कुजने कर्व, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, परसेंटेजेस बताने की कोई जरूरत। हम्म, हाँ, ये तो हमारा कॉमनैलिटी होगी ना। लेकिन फिर हम कहेंगे कि क्रिटिक करेंगे कि एक तो इनकम बढ़ रही है, इनकम भी तो बढ़ ही रही है ना साथ। दूसरा एक ये बड़ा अच्छा सपोर्टिंग आर्गुमेंट है कि कुजने कर्व कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। पहले इनकम डिस्पैरिटी बढ़ेगी, फिर उसकी वो डेवलपमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी आगे, और गरीबों को नौकरी मिलेगी। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आ सकता है लॉन्ग रन में। तो बेशक अभी शॉर्ट रन में बढ़ रही है, आर्टिकल सही कह रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में और बढ़ेगी। उसके अलावा यही है। वो हमने कह दिया ना कि लॉन्ग रन में हो सकता है कम होने के चांसेस है। सम लिमिटेड सपोर्टिंग एविडेंस, however the text is generally overall average while the table is for a particular, वो ग्लोबली है, ये कंट्रीज के लिए दो। text suggest a fall in inequality, Gini going down, table suggest a rise in inequality, Gini going up। नहीं, text भी Gini going down कब कह रहा है, टेक्स्ट ने कहा है जीनी गिर रहा है, ये कह रहा है ना ग्लोबली। ये बात हुई अभी हमने कही थी कि ग्लोबली जीनी कोफिशिएंट गिर रहा है, लेकिन इन दो कंट्रीज में जो कि मेजर कंट्रीज हैं विद द टू लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, उनमें जीनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग changes in national income, both text and table say that they have risen। बस एवरेज, बहुत बेसिक हाँ आंसर है, बहुत बेसिक सा आंसर है, कंपैरिजन करना है, ठीक है।
ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। वो देखे ना, हमको उसने कर्व वाली बात लिया है, उसको टच भी नहीं, बस वो टेक्स्ट और उसको कंपेयर कर रहे हो और बस दैट्स इट। With reference to the article, explain the idea of globalization. Assess whether there is enough evidence to conclude that globalization has a net benefit for everyone. फिर वही बात, आर्टिकल के ऊपर क्रिटिक, एविडेंस है या नहीं है। तो पहले तो हम करते हैं जनरल बात, ठीक है, जनरल बात करें, जल्दी से ग्लोबलाइजेशन समझा दें, ठीक है। इकोनॉमिक बैरियर्स दुनिया में क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग बढ़ रही है, ट्रेड इनहैंस हो रहा है, और इकोनॉमिक बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स खत्म होते जा रहे हैं, और दुनिया एक सिंगल मार्केट बनती जा रही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ की वर्ड्स हैं जिनका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक बैरियर्स, इकोनॉमिक बॉर्डर्स, इकोनॉमिक बाउंड्रीज कम हो रही हैं, फ्री ट्रेड की तरफ जा रहा है। वजह क्या है, कम्युनिकेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, और उससे होगा क्या, ग्लोबलाइजेशन, वन इकोनॉमी, वर्ल्ड पूरी एक इकोनॉमी बन रहा है। एक नंबर हमें इस तरह मिल जाना चाहिए। इनफ एविडेंस टू कंक्लूड दैट ग्लोबलाइजेशन हैज नेट बेनिफिट। ग्लोबलाइजेशन हुई है जिसकी वजह से आप देख लें इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जिनमें ट्रेड बढ़ा है। हाँ, पहले तो हम बता रहे हैं कि हाँ सीन ऑन है। ये देखें इनकम कितनी बढ़ गई है। दूसरा ऊपर लिखा था जीनी कोफिशिएंट भी कम हो रहा है। तीसरा लिखा था कि एवरेज पर कैपिटा इनकम इनकी बढ़ रही है। अबाउट 200 years ago बेनिफिट्स, कहीं पॉवर्टी कम हो रही थी, वो किधर है। हाँ, ये आ गया ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इनइक्वालिटी, रिलीफ if the attention is on relief of poverty rather than wealth of the richest poor. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, ठीक है, इनकम जिसका मतलब बढ़ रही है। लास्ट 10 साल में सब सहारन अफ्रीका में ग्लोबलाइज, मतलब ओवरऑल फायदा तो हो रहा है ना ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। नेट बेनिफिट फॉर एवरीवन, ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ है, एजुकेशन बढ़ रही है, ये फायदा है। एफडीआई बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, अंदर 10th ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, हाँ पॉवर्टी, ये 1/3 1/10 वाली बात करें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ग्लोबली कम हुई है, और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है ना, ट्रेड एनहांसमेंट की वजह से हुआ है। यहां बैठे बैठे आप एप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस वजह से है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाए गड़बड़, आ जाए गड़बड़ क्या है, कल्चर्स वाला चक्कर, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स वाला चक्कर, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेफिसिट में है, डेट बर्डन है, और एंड पे क्या कर देना है, डेटा इतना ज्यादा नहीं है, डेटा नहीं है, फारिग है, क्यों, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि देखे जा सकते थे, सच एज, हाँ, बैलेंस ऑफ कहते हैं बैलेंस वो ऑफ भी। पेमेंट्स देखने पड़ेंगे, डेट बर्डन्स देखने पड़ेंगे, इंटरनेशनल डेट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देख सकते हैं, इंटरनेशनल डेट देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा बेहतर पिक्चर मिल जाएगी कि ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ या नहीं हुआ। एचडीआई, लिविंग स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, इनकम्स खाली बढ़ने का सीन नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स का भी बढ़ने का सीन है, उससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं लेकिन इतना सॉलिड नहीं है, समझ रहे हैं। एंड पे कहने हैं कि डेटा ही नहीं है, आर्टिकल फाड़े गए, सब फाड़े गए, बहुत चीजें और हमें चाहिए थी एक अच्छा कंक्लूड करने की, लेकिन अपेरेंटली ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन के जहां फायदे भी हैं वहां थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। एचडीआई का इसने थोड़ा बहुत टच नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कहते हैं एजुकेशन वगैरह, लिटरेसी रेट कह रहे हैं इंप्रूव हो गए। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन एचडीआई की वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू पता चलेगी, वो तो खाली बातें कर रहे हैं कि बढ़ गए, बताइए ना जी। कितना बढ़ गया। तो आर्टिकल में हमें और बहुत कुछ चाहिए, एविडेंस चाहिए, ताकि हम पूरा तो इसका गोइंग 8 मार्क्स किस तरह होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसका तो हम मार्क्स स्कीम देख लेंगे, एग्जाम में हमें किस तरह पता लगेगा इसका स्ट्रक्चर किस तरह, जैसे ये ये नहीं हमने पता डिफरेंट। चलेगा, ये 8 मार्क भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है। एग्जैक्टली सर, तो हमें फिर यानी किस तरह क्वेश्चन को हम स्ट्रक्चर करें, 9 के हिसाब से, क्वेश्चन 10 के को हिसाब बस से। आप फायदे, ड्रॉबैक्स और आर्टिकल के ऊपर कमेंट और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह हमने किया है, जिस ओके तरह वो सर। ये कह रहे हैं, ये देखें, ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होगा, ये फायदे होंगे, ये नेगेटिव्स होंगे, और फिर आर्टिकल की रेलेवेंस, कंक्लूजन। ओके सर।
बस सिंपल वही, बस डिटेल देख लेनी है कि 10 मार्क का है, 7 मार्क का है, 8 मार्क का है, वो आपने खुद जज करना है। ये तो अब प्रैक्टिकली जज नहीं हो सकते, 7 8 9 10 किसी का भी आ सकता है। Growing interdependence of the world's economies, cultures, populations brought together by cross-border trade in goods and services, technology, flows of investment, people and information. If I were you ना, मैं तो ये लिख लूं, ग्लोबलाइजेशन जहां हमने लिखी है ना, ये ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, जबरदस्त। हमने भी लिखी हुई है कि वन वर्ल्ड, वो हमारी बुक ये कहती है। ये बहुत अच्छा एक तरह से पूरा समरी है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। पिक्चर ले लें और इसको अपने उसमें लिख लें, ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ कवर कर गई। हाँ जी, फायदा हो गया, तारीफें कर दें। ग्लोबलाइजेशन से जिंदगी बदल गई पूरी दुनिया में सबकी। क्यों? इनकम्स बढ़ गई, ऊपर लिखा हुआ था लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब सहारन अफ्रीका, लिटरेसी रेट्स बढ़ गए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी गिर गई, इनइक्वालिटी गिर गई, मजे ही मजे हो गए। ये सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। सीन ऑफ हो गया, क्यों? वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज बढ़ रही है। ये वाले पॉइंट्स तो उसमें लिखे ही नहीं थे, हाँ, लेकिन ये से ऐड कर देने। क्या एक्सप्लॉयटेशन चीज? ऑफ वर्क मेंशन नहीं था उस आर्टिकल के अंदर। Cultures, reliance on international financial institutions can fail, exploitation of workers, सब कुछ था, unemployment। सॉरी सर, हाँ ये था, वो हम जरा डिटेल में उस तरह नहीं ना देख रहे, होता है बस उठा के नीचे लिखना है वापस। ठीक हो गया। क्या इनकम डिस्पैरिटी उसने पॉजिटिव ले ली है ना, क्योंकि इनकम इनक्वालिटी वो कह रहा है कम हो रही है। ग्लोबली देख रहे हैं, ओवरऑल दुनिया को फायदा हुआ है, नहीं हुआ। चलें, लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, यहाँ चाइना और सर इंडिया अगर लिखेंगे, नहीं हो रहा उधर सीन ऑफ। जी ये पूछ, चाइना और इंडिया वाले जो उसने ग्राफ बनाया, टेबल बनाया, उसके अंदर तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। हाँ लेकिन वो जनरली तो तो उसने दिया है ना वो डेटा के, कितना कम जी हुआ है, पहले 7 था, फिर पता नहीं कितना था, किधर गया सिक्स वो। एट दो हजार हाँ ये तेईस 7.5 था, फिर 7.2 था, फिर 6.7 था, ग्लोबली तो फायदा हुआ है ना। द बेनिफिट्स है, आप लिख सकते हैं, आप इधर चाइना इंडिया ऑपोजिट साइड पे भी लिख सकते हैं। अकर्ड व्हाइल द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज सो आर तो प्रोबेबली मार्क्स सब्सटैंशियल। मिलेंगे। हाँ हाँ मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये भी अब डिबेटेबल है, क्योंकि एग्जामिनर, जब से एक्सटर्नल एग्जामिनर आए हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो मार्क्स स्कीम से कुछ ज्यादा हिलते नहीं है, अपनी अकल कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है। 2023 से ये बड़ा मसला चल रहा है, तभी तो थ्रेशोल्ड लो है। ठीक है, 2023 से पहले 40 नंबर का पेपर होता था, और उसमें आते थे 28 29 30, 30 कम आता था, 28 29। तो ये भी एटलीस्ट मतलब 70% से ऊपर है। तो इसमें अब आ रहा है 60 में से 35 तक भी जा चुका है, 40 भी आता है, थोड़ा कम हो गया। एएस तो बिल्कुल ही रह गया, एएस तो लेस देन 50%। The benefits have occurred while the population has increased, so are probably substantial. However, there is no statistical information to compare the benefits of the with the stats नहीं है, उसको बोले HDI का stat नहीं है। ठीक है, stats चाहिए आपको। Also, it also depends on the net benefit means. Does it mean an increase in quantity of goods, higher profits, or does it mean wider choice, better quality? ठीक है, वो नेट बेनिफिट कह रहा है, तो नेट बेनिफिट डिबेटेबल है कि इनकम बढ़ी है लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ना बढ़ी हो, लिविंग स्टैंडर्ड ना बढ़े हो, खाली इनकम बढ़ गई, ट्रेड बढ़ गया लेकिन फायदा भी हुआ है लोगों को। हाँ, डिस्पोजेबल इनकम कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, ये सिंपल नेट बेनिफिट, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं, उसने कहा ओवरऑल बेनिफिट हुआ या नहीं। तो बेनिफिट भी किस तरह हुआ है? ग्लोबली तो दुनिया में तो तरक्की तो हुई है, लेकिन ग्लोबली दुनिया में फिर ऐसी तरक्की का चार्ट डाल लें जहां जंगे हो रही हैं, समझ रहे? एक एक ऑब्जेक्टिवली आप देख सकते हैं, एक सब्जेक्टिवली आप देख सकते हैं। तो आप बोलें कि ओवरऑल फिर कि कैसे आप कह रहे हैं कि नेट बेनिफिट है या नहीं है? नेट बेनिफिट किससे आप कह रहे हैं? लोग खुश नहीं है, अगर बेशक फरारी ले ली हर किसी ने, लेकिन खुश नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, लेजर आवर्स कम हो गए। तो ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, समझ गए? इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन ओवरऑल
असेसमेंट। नहीं, ओ देखें, इनकम बढ़ गई, फाइनेंशियली बेहतर हो गए, लेकिन मास्क पहन के बैठना पड़ रहा है, कोविड आ गया, तो फिर फायदा हुआ या नहीं हुआ? आपसे बेहतर तो वो है जो जंगलों में रह रहा है, ठीक है, वो जो ट्राइब है, वो सेंटिनल ट्राइब है, कौन सा, हाँ, वो आपसे बेहतर नहीं है, खुश हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, नेचर में रह रहे हैं, वो आपसे बेहतर रह गए फिर। बेशक आपके पास मर्सिडीज है, लेकिन आपके गुर्दे फेल हुए में डायलिसिस हो रहा है, समझ रहे, डू यू गेट इट? तो क्या फायदा, ये एक बात वो ये कर रहे हैं यहाँ पे कि नेट बेनिफिट किस तरह मेजर करेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड से मेजर करेंगे, प्रॉफिट से मेजर करेंगे, या चॉइस और बेटर क्वालिटी से मेजर करेंगे? तो सब्जेक्टिव है ना। जब आप कहते हैं ओवरऑल दुनिया में तरक्की हुई है, तो क्या जवाब दूं, इसका कोई जवाब नहीं। स्टैट्स तो खाली बता रहे हैं कि तरक्की तो हुई है, ग्लोबल जीडीपी तो बढ़ा है, समझ रहे हैं बात को, ये चक्कर है। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड इट्स ऑल, मतलब बातें हैं ज्यादा इस चैप्टर में। चलें जी, यहां लगाते हैं ब्रेक।